Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. خوش آمدید میں کہتا ہوں ریڈیو اسٹیشن میں احمد حماد صدیقی کو. بہت شکریہ کاشف. اور چائے کے وقفے کے بعد یہ آخری سیشن آج کا ہے جس میں کھیل کا آغاز ہو چکا ہے. دوسرے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ 25 اوور میں انگلینڈ نے 89 رن بنائے اور 3 وکٹیں کی گری 3.55 کی اوسط سے. ہیری بروک کو گیند کریں گے راؤنڈ دا وکٹ آ کر. محمد نواز ایک ٹانگوں پہ پڑی ہوئی گیند کو کھیلنا چاہتے تھے لیگ سائڈ میں. ہلکی سی اپیل بھی ہوئی لیکن واضح طور پہ لیگ سٹمپ کو مس کر رہی تھی نواز کی گیند. کوئی نقصان نہیں. کاشف میں ابھی اپنے پچھلے کمنٹیٹر کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ زاہد محمود سے ابھی تک بال نہیں کروایا گیا. محمد نواز اس گیند کے بعد اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں. احمد آئے راؤنڈ دا وکٹ گیند کی اور اچھی گیند تھی. بابر اعظم کی کوشش ہے کہ کم سے کم بھی رن دیے جائیں. باہر نکل کے کھیلنا چاہتے تھے اس کو مڈ آف کی جانب. آخری مومنٹ پہ اپنے اسٹروک کو چیک کیا ہیری بروک نے اور کھیل دیا اسے ڈیپ ایکسٹرا کور پہ اور ایک ہی رن بن سکا. اسکور پڑتا ہوا 91 کے نقصان پہ. اگر تو زاہد محمود کو نہیں استعمال کرنا پھر تو ویسٹ ہے ایک پلیئر کا اور ایک بالر کا. اور یہی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی جگہ آپ کے پاس آپ نے بیٹنگ لائن کو تو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی لیکن بالنگ کو اس حساب سے اسٹرینتھن نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. اور ٹیسٹ میچ میں آپ آل راؤنڈرز کو کتنا کھلائیں گے. نیکسٹ بال بیک آن دا بیک فٹ کھیل دیا اسے مڈ وکٹ کی جانب. کوئی رن نہیں بنا. جی ہاں ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے جیتنے کے لیے آپ کو 20 وکٹیں لینی ہیں اور 20 وکٹیں لینے کے لیے ریگولر بالرز کی ضرورت ہے. پارٹ ٹائم بالرز کے ساتھ نہیں آپ کھیل سکتے. جی اور آل راؤنڈرز جو ہیں وہ ٹیسٹ میچ میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. ہاں اگر آل راؤنڈر بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کا ہو کیلس کی طرح کا ہو تو پھر تو آپ کھلا سکتے ہیں. ہر میچ کھلا سکتے ہیں. ایک چیز اور بتائیں کاشف کے ابرار نے پہلی اننگ میں ہم میڈیا اینڈ سے وکٹ لی یہ اب پیویلین اینڈ سے بال کریں. کیا یہ صحیح فیصلہ ہے یا اسی اینڈ سے ان کو بال کرنا چاہیے تھا؟ میں بھی حیران ہوا تھا اس چیز کو دیکھ کر کیونکہ ایک اینڈ سے آپ کو اتنا کانفیڈنس ملتا ہے آپ کو وکٹ ملتی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ بھی گیندیں فرق ہوتی ہیں. میرے ساتھ میرے کامنٹیٹر موجود ہیں احمد حماد صدیقی. احمد آپ نے لنچ کر لیا ٹھیک طریقے سے؟ جی الحمدللہ. خوش آمدید. بہت شکریہ. اور جی جس طرح کہا گیا کہ پورا پہلا سیشن پاکستان کے نام رہا اور جہاں پاکستان نے انگلینڈ کی باقی ماندہ 5 وکٹیں حاصل کی اور وہاں پاکستان بغیر کسی وکٹ کے نقصان پہ 64 رن بنا لیے اور پاکستان کو اب مزید 291 رنز کی ضرورت ہے. 34 کے اسکور پہ بیٹنگ کر رہے ہیں 52 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے عبداللہ شفیق جن کی اننگ میں 3 چوکے اور 2 چھکے شامل ہیں جبکہ ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں رضوان جو امام الحق کی جگہ بیٹنگ کرنے ہیں. 28 رنز بنائے ہیں 2 چوکے ان کی اننگ میں بھی شامل ہیں. کاشف 355 رنز کا جو بڑا ٹارگیٹ ہے اس کے لیے اوبویسلی سیشن ٹو سیشن پاکستان کو پلان کرنا پڑے گا اور پاکستان کو پارٹنرشپ میں رن میں کہتا ہوں کہ پلان کریں. اور یہ جو اب آج کے 2 سیشن رہ گئے ہیں اور کل اور پرسوں کے 6 سیشن تو 6 سیشن میں پاکستان یہ باقی ماندہ 291 رنز لیٹ سے اگر یہ کھانے کے وقفے بعد سے چائے کے وقفے تک اگر 30 اوور انگلینڈ کی ٹیم بالنگ کراتی ہے پاکستان اسی رن ریٹ کے ساتھ رن بنائے ایگزیکٹلی بالکل انڈرسٹینڈنگ دونوں بیٹسمینوں کے درمیان اور کوآرڈینیشن کے ساتھ. اور یہ ضروری ہے کہ آپ رننگ جو ہے وہ ذرا انٹینٹ کے ساتھ کریں لیتھارجک نہ ہو. جہاں آپ کو 2 رنز نظر آ رہے ہیں اس کا پہلا رن تیز اگر آپ لیں گے تو باقی رنز ممکن ہو سکتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ اس سیشن میں اگر پاکستان انگلینڈ 30 اوور کرواتا ہے اور پاکستان اسی رن ریٹ کے حساب سے بیٹنگ کرے تو تقریباً 100 رنز مزید بنا سکتا ہے. جیمز اینڈرسن اوور دا وکٹ گیند کریں گے رضوان کو اور شارٹ آف لینتھ گیند تھی بیک فٹ پہ جا کے مڈل آف دا بیٹ کھیل دیا اس سے شارٹ اسکوئر لیگ پہ جہاں ہیری بروک ہے. فیلڈ کوئی رن نہیں بنا. آپ سیشن ٹو سیشن بات کر رہے میں تو کہوں گا کہ 50 رنز کا پاکستان کو ٹارگیٹ دے کر چلنا چاہیے. 355 کا پہلا ٹارگیٹ پاکستان کا تھا 300 وہ پاکستان نے پورا کیا. اب پاکستان کا اگلا ہدف ہے 250 وہاں تک پاکستان کو پہنچانا ہے اور سیشن کی بجائے اور ٹارگیٹ کو چھوٹا کر لیں اور چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس لے کر چلیں اور اس میچ کو پلان کر کے چلیں. کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. بہت ٹائم موجود ہے پاکستان کے پاس. پازیٹیو انٹینٹ کے کیونکہ انگلینڈ نے اٹیک نہیں چھوڑنا. انگلینڈ نے آپ کو گیپس دینے ہیں اور چاروں طرف گیپس ملیں گے. اپنی شارٹس کھیلیں پازیٹیو کھیلیں رننگ بٹوین دا وکٹ اچھی کریں پھر آپ دیکھیں میچ کس طرح آپ کے نام ہوتا ہے. جیمز اینڈرسن اوور دا وکٹ آئے گیند کی
बोल्ड कर दिया रिजवान को, बहुत ही खूबसूरत गेंद पड़ने के बाद हल्की सी बाल की जानिब निकली। रिजवान परेशान है गेंद के बारे में कि गेंद को क्या हुआ, खड़े हैं अभी भी क्रीज में, बोल्ड हो चुके हैं, लेकिन उनको यकीन नहीं आ रहा कि वो बोल्ड हो गए, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकली। और यही हम सुबह से बात कर रहे थे कि जेम्स एंडरसन को गेंद नहीं ना देना ये अच्छा फैसला था कि नहीं था फैसला। बहुत ही खूबसूरत गेंद पड़ने के बाद बाहर निकली, लाजवाब लाजवाब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पिच ऑफ डिलीवरी, और कमाल कर दिया जेम्स एंडरसन ने और बोल्ड किया। पाकिस्तान को पहला नुकसान उठाना पड़ा। खाने के वक्फे के फौरन बाद पहले ही ओवर में पाकिस्तान के बैट्समैन रिजवान आउट होके वापस पवेलियन में। एग्जैक्टली काशिफ, इंग्लैंड के पास जो एडवांटेज है वो ये है कि दे हैव द रन्स ऑन द बोर्ड, और उसके हिसाब से वो पाकिस्तान को शॉट खेलने की दावत दे रहे ताकि पाकिस्तान की बैट्समैन अगर शॉट खेलेगी तो आउट करने की भी चांसेस है, 4 रन बनेंगे। और ये बॉल आपने देखा कि सीधा बॉल मिस कर गए, रिजवान लाइन में नहीं आके खेले, और यही गलती है कि जहाँ आप फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, बैक फुट पे जाएंगे, तो आप थोड़ा सा जो विकेट पे हल्के से क्रैक्स है, और उन क्रैक्स की वजह से बॉल जो है वो डिविएट हो सकता है ऑन बोथ साइड ऑफ द विकेट। और हमने देखा कि पाकिस्तान को खाने के वक्त के बाद हम कहते सेशन टू सेशन प्लान करें और रन विकेट्स इन हैंड रखें, ये की होगा पाकिस्तान के लिए अगर ये टारगेट पाकिस्तान ने चेज करना है। लेकिन एक नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा फौरन खाने के वक्फे के बाद। पाकिस्तान का स्कोर 66, 1 विकेट के। लेकिन अभी भी कोई इतना नुकसान नहीं है, अच्छी पार्टनरशिप दी है अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने। मैं समझता हूँ कि जो रिजवान की जिम्मेदारी थी पाकिस्तान के लिए अच्छी पार्टनरशिप देना और गेंद को थोड़ा सा पुराना कर देना, क्योंकि 16 ओवर पुरानी ये गेंद है, गेंद भी हल्की सी पुरानी हो चुकी है। तो अब बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के कप्तान हैं, जो नए बैट्समैन आए हैं, उनके कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी बैटिंग रिवॉल्व करेगी अराउंड बाबर आजम। And if Babar Azam can play a good knock here, पाकिस्तान is in with a chance. Exactly, अभी तक बाबर आजम के क्रेडिट की बात की जाए, अगर आज वो डबल सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ये वो वक्त है जनाब कैप्टन से चलिए हम सेंचुरी पे भी खुश हैं। नहीं, हम सेंचुरी से हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। बाबर आजम एक मैच विनिंग निकले, देखिए कैप्टन और मैच को फिनिश करे, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया के बड़े बैट्समैनों को आप देखें तो मैच को बड़ा डीप लेके जाते हैं अपने तजुर्बे। जेम्स एंडरसन एक फाइन एक लेग स्लिप शॉट कवर, वेरी शॉर्ट मिड विकेट के साथ, और बैक फुट पे जाकर खेल दिया इस टूर्नामेंट। देखिए फील्ड में भी चेंज किया है, और 2 फील्डर बिल्कुल सामने तैनात कर दिए हैं ड्राइव के लिए, उस ड्राइव को ब्लॉक करने के लिए बाबर आजम की, और ओवर इख्तिताम को पहुंचा है जेम्स एंडरसन का। चाहे खाने के वक्फे के बाद का पहला ओवर, और कामयाब ओवर करवाया जेम्स एंडरसन ने, जिसमें उन्होंने विकेट हासिल की रिजवान की। उन्होंने बनाए थे 30 रन, 43 गेंदों का उन्होंने सामना किया था, और पाकिस्तान 1 विकेट के नुकसान पर 66 रन 4.13 की औसत से रन बनाए। जी हाँ, पाकिस्तान को अभी भी मजीद 289 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। टाइम बहुत है अगर हम इस टेस्ट मैच की बात करें, लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान के लिए की क्या है कि पाकिस्तान ये टारगेट चेंज डाउन करे कि पाकिस्तान को अपनी विकेट्स जो है वो महफूज रखनी होंगी, और पार्टनरशिप में रन बनाने पड़ेंगे, और सेशन टू सेशन। और फिर आपने कहा कि 50-50 रन की टारगेट रखेंगे, इतने 50 रन हमने अचीव करने, लेकिन विकेट्स बचा के रखनी है। देखना पड़ेगा इंग्लैंड क्या स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा है। और फिर मैंने कहा कि उनको लग्जरी है इंग्लैंड को, वो यही है कि दे हैव द रन्स ऑन द बोर्ड, और इतना बड़ा टोटल उनके पास है जिसको वो समझते हैं कि 8 सेशन बेशक रहते हैं, वो डिफेंड कर पाएंगे, पाकिस्तान की बाकी विकेट ले सकते हैं। अब पाकिस्तान को इसका कितना आउट ऑफ द बॉक्स या इनके इंग्लैंड की इस स्ट्रेटेजी का जवाब देना होगा। जी, और बाबर आजम 28 साल और 57 दिन उनकी उम्र है। 15 अक्टूबर 1994 को पैदा हुए बाबर आजम सीधे हाथ से बैटिंग करते हैं, और बैटिंग में अभी तक उन्होंने 43 मैचेस खेले हैं, 77 इनिंग्स हैं उनकी करियर की, 3262 रन बनाए हैं, 196 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 47.97 की औसत से 8 सेंचुरियां और 23 मिस सेंचुरियां बनाई हैं बाबर आजम ने अपने करियर में। अब्दुल्ला शफीक की आगे स्टैट्स देख रहे थे कि हम पहले 9 टेस्ट मैच खेलकर उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड ग्रेट जावेद मियांदाद के पास था जिन्होंने 890 के करीब रन बनाए थे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने 17 इनिंग्स में 900 से ज़्यादा रन बनाकर 9 टेस्ट मैच खेलने के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जी हाँ, ओली रॉबिन्सन
कमेंट्री बॉक्स से आए गेंद करेंगे अब्दुल्ला शफीक को, आए गेंद की और फॉरवर्ड डिफेंस। और अब्दुल्ला शफीक के हवाले से बात हो रही थी, उनका इंटरव्यू चल रहा था माइक कंसल्टेंट के साथ, और उसमें यही पूछा जा रहा था कि ऑब्वियसली उनके फादर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए हैं और साथ साथ उनके एक अंकल हैं, लेकिन मिसबाह-उल हक का उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने इनको बड़ा इंकरेज किया, इनकी टेक्निक को डेवलप करने में उनको हेल्प किया। इंग्लैंड के कामयाब बॉलर हैं जिन्होंने एक विकेट हासिल की है और पाकिस्तान को अब जीतने के लिए 157 रन दरकार है। जी हाँ, काशिफ, इस टेस्ट मैच की बात की जाए, आज तीसरे दिन जब खेल का आगाज हुआ तो इंग्लैंड ने 202 रन बनाए थे और उसके बाद विकेटें गिरी थी। उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान ने 73 रन पे इंग्लैंड के बाकी 5 विकेटें हासिल की। इस तरह इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी इनिंग में 275 रन बना के आउट होगी। हैरी ब्रुक ने 108 रन बनाए। और पाकिस्तान की अगर बॉल की बात की जाए तो अब्रार, जिन्होंने पहली इनिंग में 7 खिलाड़ियों को आउट किया था, दूसरी इनिंग में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और इस तरह उन्होंने पाकिस्तान के दूसरे बॉलर हैं जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 11 विकेट हासिल की, और पहले स्पिनर है पाकिस्तान के जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 11 विकेट हासिल की। मोहम्मद जाहिद फास्ट बॉलर थे जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में रावलपिंडी में 1996 में 11 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो ये एक और रिकॉर्ड अब्रार ने अपने नाम किया। लेकिन जब पाकिस्तान को 355 रन का हदफ मिला तो लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा और इंग्लैंड पाकिस्तान को बआसानी शिकस्त दे देगा। लेकिन क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, और पाकिस्तान ने एक ऐसा टोटल जो लग रहा है कि पाकिस्तान की रीच से बाहर है, लेकिन जिम्मेदाराना बैटिंग जिसमें अब्दुल्ला शफीक ने 45 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 30 रन बनाए, सऊद शकील अभी बैटिंग कर रहे हैं 54 के स्कोर पे, इमामुल हक 60 रन बना के आउट हुए, फहीम अशरफ क्रीज पे मौजूद है 3 रन बना के। पाकिस्तान का स्कोर 198, 4 विकेटों के नुकसान पे। और मैं कहूँगा कि कल अगर नजर आए तो जो मजीद 157 रन है जिसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं काशिफ, जो 3.09 के औसत से पाकिस्तान रन बना रहा है, तो शायद विकेटें अगर पाकिस्तान बचा के रखे तो लंच के वक्फे के बाद पाकिस्तान ये टारगेट हासिल करने की पोजीशन में हो सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो फिर पाकिस्तान के लिए मुमकिन होगा कि लंच के वक्फे के बाद और टी से पहले पाकिस्तान अपना ये हदफ पूरा कर दे। लेकिन कल का दिन जो है वो इंग्लैंड में पूरा जोर लगाएगा और इंग्लैंड की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को ये हदफ ना मुकम्मल करने दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने भी भरपूर कोशिश करनी है ताकि ये सीरीज़ को 1-1 बराबर करके कराची जब जाएं तो सीरीज़ लेवल हो और वही डिसाइडर हो इस सीरीज़ के बारे में। पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट चैम्पियनशिप है, और अगर पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान को ये सीरीज़ 2-1 से जीतनी होगी और पाकिस्तान इसके लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। जी हाँ, आज इमामुल हक क्योंकि इंजर्ड थे वो ओपन करने नहीं आए, उनकी जगह मोहम्मद रिजवान ने ओपन किया। और दोनों ने, रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने पहली विकेट की शराकत में 66 रन बनाए, दूसरी विकेट पाकिस्तान की 67 के स्कोर पे गिरी, तीसरी विकेट पाकिस्तान की 83 के स्कोर पे और चौथी 191 के स्कोर पे। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स 360 एंड आई एम योर होस्ट अहमद हमाद। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड क्रिकेट टेस्ट मैच इज इन प्रोग्रेस एट मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। और आज तीसरे दिन खेल के इख्तिताम पे पाकिस्तान, जिसको 355 रन का टारगेट मिला, अब तक खेल के इख्तिताम पर 198 रन बना चुके हैं। पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर चुकी हैं और अब सऊद शकील बैटिंग कर रहे हैं 54 के स्कोर पे, उनका साथ दे रहे हैं फहीम अशरफ 3 के स्कोर पे। मजीद 157 रन की जरूरत है पाकिस्तान को काशिफ मैच जीतने के लिए। और जिस तरह कहा गया कि आज जब खेल का आगाज हुआ तो इंग्लैंड ने 202 रन पे 5 विकेटें उनकी गिर चुकी थी और कहा जाता है कि इंग्लैंड मजीद अगर 150 रन और कर लेगा तो 450 से ज़्यादा की लीड हो सकती है और उसके बाद पाकिस्तान को बैटिंग देगा। लेकिन पाकिस्तान ने 73 रन पे उनकी बाकी मानदा तमाम विकेटें हासिल की और पाकिस्तान मैच में वापस आया और एक ऐसा टोटल नजर आया कि पाकिस्तान जो है वो अचीव कर पाएगा। और उसके लिए पाकिस्तान की 2-4 जिम्मेदाराना इनिंग थी जिसमें हमने कहा कि अब्दुल्ला शफीक ने 45 रन बनाए और उनके अलावा मोहम्मद रिजवान जो कि इमामुल हक की जगह बैटिंग करने आए थे, मोहम्मद रिजवान ने भी अच्छी बैटिंग की, 30 रन बनाए। और दोनों ने, जी हाँ, मोहम्मद रिजवान ने 30 रन बनाए, सऊद शकील जैसे मैंने कहा 54 रन पे बैटिंग करे। इमामुल हक और सऊद शकील की जो पार्टनरशिप थी चौथी विकेट की 108 रन बनाए, इसने पाकिस्तान को मैच में वापस ले आया क्योंकि बाबर आजम 1 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए थे और उसके बाद फिर रिजवान आउट हुए, तो यहाँ पाकिस्तान को धचका लगा। अब्दुल्ला शफीक भी क्लीन बोल्ड हो गए थे। यह एक ऐसा स्पॉट नजर आ गया इंग्लैंड के बॉलर को जहाँ बॉल पड़ के उस क्रैक पे और एक्स्ट्रा विकेट आपको मूवमेंट नजर आती है और वहाँ बैट्समैन आउट हो रहे, परेशान हो रहे हैं उसको फेस करते हुए। जी बिल्कुल, और बड़ा ही अच्छा कमबैक किया पाकिस्तान ने। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम कोलैप्स कर देगी, ख़ास तौर पर उस वक्त जब बाबर आजम को बोल्ड कर दिया ओली रॉबिन्सन ने। लेकिन अभी भी मैच में बहुत कुछ बाकी है, टाइम 2 दिन का टाइम है
ٹائم کا تو مسئلہ بالکل ہے ہی نہیں، لیکن اب جو ایشو ہے پاکستان کے پاس وہ ہے وکٹوں کا بچانا، کہ پاکستان کس طرح وکٹیں اپنی بچائے گا اور کس طریقے سے آگے سکور کو لے کر جائے گا. اور ابھی بھی میچ جو ہے وہ 50-50 آپ کہہ سکتے ہیں، کسی طرف بھی جا سکتا ہے. پاکستان کی ایک دو جلدی وکٹیں گریں تو کچھ بھی میچ کا پاکستان جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے. اور پاکستان کی ٹیل کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دم کلیپس ہو جاتی ہے. مگر ابھی بھی میچ کے اندر بہت کچھ ہے، لیکن بظاہر لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستان کا اگر 50-50 نہیں ہے تو ہلکا سا پاکستان کا اپر ہینڈ ہے، اور پاکستان کو کچھ تھوڑا سا ایج مل گیا ہے کرٹسی سعود شکیل اور امام الحق کی جو پارٹنرشپ تھی اس کی وجہ سے. ادروائز پاکستان کا جو ہے پوزیشن تھوڑی سی ڈاواڈول ہونے لگ گئی تھی، لیکن آج پاکستان کا اوور آل دن بہتر رہا. پاکستان کے بالرز نے جس طرح انیشل بالنگ کی اور جس طرح انہوں نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا شروع میں، وہ بہت انکریڈیبل تھا. پاکستان نے روکنا ان کو اس 355 پہ، یہ بھی بہت اچھی ایفرٹ تھی پاکستان کی طرف سے. ادروائز ہمیں لگ ایسا رہا تھا کہ 400 کا ٹارگٹ آسانی سے انگلینڈ پاکستان کو دے دے گی، لیکن ڈسپلن بالنگ کی، کرٹیل کیا پاکستان نے انگلش ٹیم کو اور روکا 355 کے ٹوٹل پر. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. انشاءاللہ کل پاکستان کی اگر ٹیم ایسی کھیلتی رہی تو امید ہم یہی کرتے ہیں کہ لنچ تک چیزیں اور بڑی واضح ہو جائیں گی اور پاکستان جو ہے فتح کے قریب ہو جائے گا، پرووائڈیڈ کہ پاکستان کی وکٹیں انٹیکٹ رہی. Exactly, and on this note, wishing Pakistan cricket team all the best. We come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.